Why the attendance of your batch is very low? I'm not getting the point. Anyway, so in previous lecture, am I audible to you? I hope. Yes, sir. Yes, sir. Right, right. Now see, uh, till what we have seen. Started learning two-dimensional array, and we started from here. Two-dimensional array. So we have seen what is two-dimensional array. We have seen how to take input in two-dimensional array. Thereafter, we have seen the memory map. How could we organize elements of two-dimensional array? Later, we have seen how to initialize manually, meaning statically or dynamically. We know very well, and how these arrangements are actually there in memory that we have seen. And I just shown you the different variations that how could we declare in variety of manner. uh, we have broadly seen मतलब बहुत detail में we have in detail seen the distribution of its element in the computer memory and how addresses are allocated. We have I think I discussed much on this part because I feel that until unless you don't understand the working of memory, it is not worthful to uh, understand the concept anyway. Furthermore, we have seen how could we utilize pointer to access two-dimensional array. That way, we have also seen that in line with one-dimensional array, two-dimensional array, the name of the array is again the constant pointer to its very first element. And since the very first element is the first element of the first one-dimensional array, since if we assume it as a three, one, two, three, four, two-dimensional array, sorry, one-dimensional array, then every one-dimensional array has two elements, first and second. So the address of this complete array is the address of the first element, and the address of first element, meaning first one-dimensional array, is itself the address of first element of that array. So overall, we could say that this is address of this element is the address of this complete array and the address of this first one-dimensional array. Address of this element is not the address of complete array, but it is the address of this second one-dimensional array. Likewise, address of this element is not the address of two-dimensional array, but it is address of 1312 is the address of this one-dimensional array. And we see two-dimensional array in the perspective that it has four elements, meaning it has four one-dimensional array. So it's whenever we say the elements of two-dimensional array, we mean to say the one-dimensional array, and that's why we name it like S0, S1, S2, S3 as earlier in one-dimensional array. And we use second index, we use first index to access the row, meaning each and every one-dimensional array, and we use second element, second index to search within that one-dimensional array. That's what the objective and understanding about this part. Furthermore, we have also seen what is uh, these three notations. We have seen that all three notations are exactly same, and the motivation to conclude this notation lies in the sense that whenever we say a of I, we mean to say a plus I star. You can also say I plus a star. Not an issue. Not an issue. Not an issue. No such issues. है ना? Why this is true? Because we know from class 6 mathematics that plus sign is commutative. We can commute it. Na? And in this way, we could also say this.
This is also valid, because if we can write this, and if we can convert from here to here, we can also convert it from here to here. So this is also true, I feel. So any issues till this point? No. Fine. So if we know this, we can extend this notation, है ना, to any level. Suppose there is a of I, j, and if I assume it as b, so what is the notation? B of j, है ना? And if we expand this is nothing but a plus I star, meaning b is nothing, a plus I star, है ना? And b of j meaning b plus j star, and replace this part here at b. So in place of b, we can write a plus I, and plus is this side, j is this side, bracket is this side, this bracket and this star will expand you, kind of this notation. So we can convert from this to this in this fashion. That I hope you people understand in broad sense. If you have any issue, you can ask me, because these are usually confusing topic for students. I don't want to confuse you. I can show you, this is just a mathematical part, just mathematics. We just need to remember one thing, and we know rest of the things are true, right? So come forward. So we have seen how in how many ways we could use pointer, and the ways we can use pointer uh, is bit different in the case of two-dimensional array. But when I was discussing this lecture, है ना? So in this lecture, I shown you that if we wish to access an array in another function, है ना, like this function, right? This function, this is a function. If I wish to access this array A in this function, so we need to pass this array to A, and this is the way we can एक्सेस दिस, है ना? जितना भी इसके कॉलम का साइज है, यही सेम कॉलम साइज का यहाँ पे एरे डिक्लेयर करना है। रो साइज को मेंशन नहीं करने से भी चलेगा। क्यों चलेगा, ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? ओके, नाउ दिस वाज द सेकंड वे टू दिस सो फंक्शन, and the difference is only this part. So here we are using a pointer who is pointing to an array of 4 elements. So this is a pointer, q is a pointer pointing to array of 4 elements. If there is a bracket meaning array, right? And the next way was, and simply told you that what is the difference between a pointer who is pointing to integer, a pointer who is pointing to integer, here is an integer, simple integer, and a pointer who is pointing to an integer array, here is an array, here is an array. So here is an integer. So what is the difference between a pointer who is pointing to an integer and a pointer who is pointing to an array? Is jump. How much jump it will take when we will say p plus 1, है ना? तो it will jump whosoever it is pointing, जिसको भी ये पॉइंट कर रहा है ना, उसके साइज के जितना जंप करेगा। अगर ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो एक इंटीजर जंप करेगा। अगर ये एरे को पॉइंट कर रहा है तो ये एक एरे जंप करेगा। दैट्स सिंपल मैकेनिज्म, जिसको भी पॉइंट करेगा उसके इतना जंप करेगा, राइट? सो आई डोंट फील यू मे हैव एनी क्वेरी विद दिस। एनी क्वेरी? नो, फाइन. Now this was the third way which I was discussing in last class, and what I told you that this is a two-dimensional array and it has three one-dimensional array it has, and the address of this first element is this, second element is this, third is 8, next is 22, next is the address of this element 5, that we could say 4026, because after 26 the next address will be 22, next address will be 26, and 20, 32, 36,
40 and this is 44. Again, I marked it 4044. So these all are stored in a sequential fashion like here. So this address of this element is 4026, and in similar fashion address of this is 4044. So this is nothing 9016, and here we have 5 6 7 and 8, and here we have 1 2 3 4. So what we can see, to understand this part we need to understand this part, that whom p is pointing to integer. So see, here q is a pointer to an integer. How could we distinguish q is pointer to integer? If q is like this, and then this is a pointer to an integer. If q is like this, that means it is a pointer to an array. So since we are using this notation, meaning this is pointing to an integer. If we are using this part, है ना? So here q will be an integer, and who is pointing to an array? So we have to declare an array, and this pointer will contain the address of this array, that is the address of the very first element. But if you could see here that q is a pointer pointing to whom? Pointing to this array, this two-dimensional array, and the address of this two-dimensional array is 1010. So q contains simply 1010, row contains 3, 4 contains this. Now how could we it access individual element of this two-dimensional array? See, it's a we need to be bit clever, है ना? एक आइट्रेशन हमें तैयार करना पड़ेगा, राइट? अभी देखो, हमें इस पहले एलिमेंट का, लेट मी टेक सम अदर कलर. We know the address of this element 1010. Now to access the last element, every time we need to add what? First time we need to add this plus 0, second time we need to add this plus 1, third time we need to add this plus 2, fourth time we need to add this plus 3. So that's the way. 0 plus 1 plus 2 plus 3. This way we could access. कोई इशू है किसी को? नहीं ना? So अब इस एलिमेंट को जब हमें एक्सेस करना होगा, तो देखो यहाँ पे आई था, तो आई में इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया. इन दैट वे वी आर एक्सेसिंग इजीली, है ना? सो द एक्सप्रेशन हियर रिटन इज विल फॉलो BODMAS, एंड आई की जो वैल्यू होगी, रो की वैल्यू क्या है? फिक्स है, इट इज 4. तो रो ये बताता है कि चार चार हमें जंप कराने हैं, है ना? आई की वैल्यू जब 0 होगी, तो रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी. और जे का वैल्यू क्या करेगा? 0 1 2 3 वेरी करेगा. क्यू की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 1010, है ना? सो नाउ आप इसके सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लो. जब आई की वैल्यू 4 है, 0 है, ये तो ऑलवेज 4 ही होना है ना? नाउ यू कुड वॉच दैट हाउ कुड बी एक्सेस. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 0, इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, और यहाँ भी एडिशन हो रहा है. नाउ यू कैन वॉच. 0 हो गया, तो 1010 में 0 को जोड़ा और 0 जोड़ा, तो क्या 1010, दैट इज 1. यहाँ पे क्या है? अगेन ये सारा तो 0 ही पार्ट हो गया, इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो 2 एक्सेस होगा. ये फिर से 0 है, ये बीच वाला पार्ट, तो 1010 प्लस 2 इज 3, 10 प्लस 3 इज 4. नाउ इन नेक्स्ट आइटरेशन, ये तो क्यू तो 1010 ही होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो कॉलम की वैल्यू तो वही रहेगी. जे की वैल्यू फिर से 0 1 2 3, ठीक है? So this is nothing but 1 into 4, 1 into 4, 1 into 4 in all 4 cases. And q की तो वैल्यू यही रहेगी. We are not changing the value of q. So now see, 4 multiplied by 1, तो 1010 में क्या ऐड हो जाएगा? 4. तो 4 का जंप मतलब क्या? यहाँ पे, है ना? 3 का जंप में यहाँ था, तो मीनिंग 1010
मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी प्लस 4 जंप, तो 4 जंप में क्या, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप और ये फोर्थ जंप, यानी इट विल गिव अस 5। नाउ ये तो फिर भी 4 ही रहेगा, फोर्थ जंप 1010 प्लस 1 6, दिस इज 7, दिस इज 8, एंड दैट वे फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक एक जंप कर रहे हैं हम लोग, एक एक जंप कर रहे हैं, आई की वैल्यू से हम लोग जंप ले रहे हैं और जे की वैल्यू से क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट को रो में एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज सेम थिंग दैट वी, दिस इज मोस्ट जेनरिक, ये बहुत जेनरिक फॉर्म है। और इसमें तुमने गौर किया होगा कि क्यू में अभी एक एरे का जंप नहीं हो रहा है, ये मैं फोकस करना चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हें वर्ड टू डायमेंशनल एरे ऐसे भी प्रोग्राम करके सिखा देता कि दिस इज इट, यू शुड रिमेंबर एंड वर्क ऑन, बट मैं जो समझा रहा हूँ दैट इज वर्थफुल। समझो, गौर करो कि पहले क्यू में जब ऐड करते थे +1 तो कितना जंप होता था, एक एरे का जंप होता था। इस केस में एक पूरे इतना जंप होता था। लेकिन अभी जब हम ऐड कर रहे हैं ना, ये क्यू की वैल्यू क्या है, 1010, 1010 में जब मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो क्या ऐड हो रहा है, 1010 में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो मतलब 1 इंटू कितना होगा, जिसको भी क्यू पॉइंट कर रहा होगा, क्यू पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर को, तो मल्टीप्लाई 4 होगा, यानी ऐड हमेशा क्या होगा, 1014। जब 2 है यहाँ पे, जब 2 से इंक्रीमेंट कर रहा है, सो 2 इंटू जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसका, यानी 1018। लाइकवाइज, गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर गेटिंग देन से मी यस और नो आई मीन, Yes, sir. है ना? ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। एवरीवन से यस और नो इन चैट बॉक्स, और यू कुड से रिपीट और समथिंग so that I can understand. Okay, many people say yes. I think it is good. Arjun, Shwetket, Rohit. So, हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो, तमा बोलो। so could you please repeat this one? कौन सा वाला? ये जो आखिरी में आपने समझाया। ये वाला, ये पार्ट, हाँ वही। ये वाला। देखो इसका इंट्यूशन यहीं से है, ये वाला पार्ट जब मैंने कल समझाया था तो यहीं से इसका इंट्यूशन डिराइव होता है। इसका इंट्यूशन डिराइव करने का मेरा मतलब था लास्ट क्लास में, अगर हाँ यहाँ पे सीट है मेरे पास, कि देखो अगर ये बात समझ में आती है बेटा तो सबको समझ में आएगी। अगर कोई एक इंटीजर ए है तो क्या होगा, एक ए होगा, उसका कोई अपना एड्रेस होगा, और ए में अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो 5 यहाँ पे वैल्यू जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ एक ए ऑफ 5 डिक्लेयर कर रहा तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक 5 साइज का एरे क्रिएट करेगा, ठीक है। और मैं इसमें अगर कोई एलिमेंट एक्स रख रहा है तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा, इसका नाम होगा ए, इसका पहला भी एड्रेस सपोज 2010 है, 2014, 2018, 2022 एंड 2026, राइट। अभी यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ तो ये ऐसा पॉइंटर है, p is pointing to a, meaning we are creating p pointer p, for the sake of simplicity we could say p1। तो p1 का अपना कोई एड्रेस होगा, और p1 किसका एड्रेस रख रहा है, a का एड्रेस रख रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहूंगा तो यहाँ मैं दो टाइप से पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ मैं अगर पहला जो वेज है उसमें मैं अगर पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, पॉइंटर p2, ठीक है, एंड p2 इक्वल टू a, पहली बात। दूसरी बात मैं लिख सकता हूँ स्टार p3 ऑफ 5 एंड p3 इक्वल टू a। अब इस दोनों ही में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये वैसे ही काम करेगा जैसे पिछला वाला किया, क्योंकि डिफिनीशन चेंज नहीं हो रहा है ना। p2 अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है ना। p3 किसको पॉइंट कर रहा है, p3 पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर को जो कि क्या है, एक एरे है। यहाँ p2 किसको पॉइंट कर रहा है, सिंपली एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये दोनों ही वे वैलिड है किसी भी एरे को पॉइंट करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, दोनों ही में बस डिफरेंस होगा कि वो दोनों
जंप कैसे कर रहा है, राइट। अगर मैं अभी इस पॉइंट पे P2 में क्या वैल्यू होगी, अभी इस पॉइंट पे P2 में वैल्यू होगी, P2 का अपना कोई एड्रेस होगा 4010 और P3 का अपना कोई एड्रेस होगा 5010। अभी जब यहाँ पे असाइन किया तो इसमें भी 2010 होगा और इसमें भी 2010 होगा, राइट। अब भी अगर मैं P2+1 बोलता हूँ, ठीक, या फिर मैं P3+1 बोलता हूँ, और या फिर यहाँ पे मैं P1+1 बोलता हूँ, तो तीनों ही स्टेटमेंट में चेंज क्या आएगा, इसके रिजल्ट क्या आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंस को समझना इज मच इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो इस केस में क्या है, ये सबसे आइसोलेटेड केस है मेरा, ठीक है। इस केस में क्या है, P1 की वैल्यू क्या है 1010, प्लस क्या करना है हमें 1 करना है, लेकिन 1 का जंप मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल में जो होता है वो होता है कि P1 या पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर प्लस जो भी जंप करना है मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ एलिमेंट whom वी आर पॉइंटिंग। तो किसको पॉइंट कर रहा है, P1 किस टाइप का है, P1 इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ इंटीजर का साइज अगर 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एड्रेस विल बी 1014। चलो ये तो यहाँ की बात थी, इसमें देखते हैं। यहाँ इस केस में क्या है, P2 इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो P2+1 का मतलब P2 की वैल्यू कितनी जो भी होगी +1 × 4 होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, P3+1 इंटू क्या होगा, कौन बताएगा। सर 1 × 5 होगा। एरे जंप 1 × 5 5, ये 4 क्या है, सर ये 20 सर साइज है सर वो किसका साइज है, एलिमेंट का, जिसको वो इंटीजर, पॉइंटर इसको P1 किस टाइप का है, P1 किस टाइप का है, इन टाइप का है सर 4 होगा ना, इन टाइप का है तो। है ना। अब यहाँ पे P3 हाँ, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, मगर वो इंटीजर इंटीजर टाइप कैसा है, का। एक इंटीजर एरे है ना। तो ये इंटीजर एरे का साइज कितना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 20, 5 20। वी आर टॉकिंग अबाउट बाइट, नंबर ऑफ बाइट, इंटीजर 4 बाइट, तो इंटीजर एरे कितना बाइट, 20 बाइट, है कि नहीं, गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। अभी समझ में आया, समा, यस सर, आ गया। ये थैंक बात समझ में यू। आई ना। अर्जुन, अभी कंफ्यूज हो रहा था तुम, ये बात समझ में आ गई। ये यस 20 सर। बाइट हटेगा क्यों, क्योंकि ये जो P3 है वो इंटीजर एरे है, और इंटीजर एरे कितना साइज का है, 5 साइज का है, यानी 5 क्या होंगे इसके पास, इंटीजर होंगे। तो 5 इंटीजर, ये 4 बाइट, 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 टोटल कितना ले रहा है, 20 बाइट ले रहा है ना। तो टोटल 20 बाइट हो गया। तो 20 अग्नि अगला एलिमेंट, अगला P3 जो जंप होगा सो कहाँ होगा, कौन सा एड्रेस पे होना चाहिए, 2026 के बाद 2030 ना। तो इसको करके देखो तुम, 2010 प्लस 1 × 20, 20 ही ना, हाँ। तो कितना आ गया, 2030 आ गया ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेमोरी समझने नो में, सर, इट्स क्लियर। है ना। लेकिन अगर इस मेथड से हम देखें तो 1010+4 दैट इज 1014। अगर इस पॉइंटर से हम जाते हैं तो हम इसके एलिमेंट बाय एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और इस पॉइंटर के थ्रू हम जाते हैं तो हम रो बाय रो एक्सेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हमें और भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इस दो डिफिनीशन के मतलब को समझो, ठीक है। और दोनों ही 2 डायमेंशनल एरे में यूज हो सकता है।
ये मोस्ट जेनरिक वे है। हाँ, ये मानता हूँ कि इसमें प्रिकॉशंस ज्यादा हैं, क्योंकि आप डिफरेंस समझ रहे हो कि जंप कैसे हो रहा है। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ 99% स्टूडेंट को ये डिफरेंस पता नहीं है कि पॉइंटर अगर हम दो वेरी टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो उसका मतलब क्या है। 99% you ask your friends, those are in BTech or MTech or any other program, they don't know this difference, right? Back to the point. तो इस पॉइंट पे हमारे पास हम लोगों ने सेम चीज मैंने लगाया, मैंने कुछ नया नहीं किया। सिंस मेरा ये क्यू क्या था, क्यू एक इंटीजर पॉइंटर था, इसलिए इससे मैंने क्या किया, एलिमेंट बाय एलिमेंट में एक्सेस इजीली कर सकता हूँ। और इस वाले केस में मुझे थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ा, क्यू को पहले पी में रखना पड़ा, फिर पी से मैंने एक्सेस किया। फाइनली हमें हमने इनडायरेक्टली, अगर तुम ध्यान दो, तो एक्सेस हम एलिमेंट को एक नॉर्मल इंटीजर पॉइंटर से ही कर रहे हैं। ये तो बस एक्सेस करने के लिए था, इस एरे को यहाँ तक लाने के लिए था, इसमें इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए था। फाइनली हम काम तो इसी से कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्यू का एड्रेस जो है वो पी में डाल दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? एनी इश्यूज? ये क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? हाँ, सो ट्रू फॉल्स, वेरी सिंपल। पहला वाला क्या होगा, ट्रू होगा ना फॉल्स होगा? मैं पूछता हूँ बारी बारी से। अरिहंत बताओ। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। यस क्वेश्चन सर। नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना क्वेश्चन? नो सर। अरे अब स्लाइड दिख रही है ना मेरी? यस सर दिख रही है। दिख सर अब रही दिख रही है। है ना? द एरेस int यस num 26 has 26 एलिमेंट, राइट है? ट्रू है ना फॉल्स है? सर ट्रू है। अच्छा, अश्विन शर्मा? किसी ने कहा, अरिहंत ने कहा ये ट्रू है। अश्विन शर्मा, प्रखर, ठीक है, आगे से अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगा मैं। यस सर। हाँ बेटा बताओ, ये ट्रू है ना फॉल्स है पहला वाला? यस सर। यस सर क्या? ट्रू है सर। ट्रू है? क्यों ट्रू है ये? सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है सर। छोड़ो, दिस इज ट्रू। सेकंड, द एक्सप्रेशन num1 डेजिग्नेट द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, ट्रू है? कोई अगर एरे है तो num1 का मतलब पहले एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। भारती? यस सर। भारती, यस सर। क्या होगा बेटा सेकंड का आंसर? इतना तो आना चाहिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फॉल्स हो रहा है। फॉल्स क्यों? हम्म, फॉल्स क्यों है ये बताओ। कुछ तो सोचा होगा ना कि ये कारण है सर इसलिए फॉल्स है, ऐसे तो नहीं तुमने तुक्का लगा दिया। नो सर। तो क्यों फॉल्स है बताओ। रोहित? यस सर। हाँ बताओ, क्या है, ट्रू है ना फॉल्स है सेकंड वाला? सर सेकंड ट्रू है। ट्रू है? यस सर। क्यों ट्रू है? सर क्योंकि जो अरे है नंबर वो अपने पहले पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, समा कटारिया? यस सर। हाँ बताओ, सेकंड वाला क्या है, ट्रू है ना सर फॉल्स है? मेरे हिसाब
फिर से बोलना बेटा, तुम्हारी आवाज कट गई, फिर से बोलो। false है। ओके, स्ट्रेट केट। यस सर। बोलो क्या होगा, ट्रू है ना फॉल्स है? सर ट्रू है क्यों ट्रू है? सर। एरे के पहले एलिमेंट को डिस्टिनेट करता है। चलो, अब जिनको ट्रू है फॉल्स है थोड़ा ध्यान दो, और कल से और भी ध्यान देना। मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं तुम्हें देखो हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। इस एरे का नाम है नम, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें इतने एलिमेंट है, मैंने रख दिया 5 6 7 8 9। ठीक, अभी मैं अगर नम 1 बोलूंगा तो क्या आएगा इसका वैल्यू? अगर मैं नम 1 6 प्रिंट करूंगा 6 6 आएगा ना? 6। तो फिर कैसे हो गया नम 1 पहला एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट को डेजिग्नेट कर रहा है क्या? ये तो सेकंड एलिमेंट को डेजिग्नेट कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट को कौन डेजिग्नेट करेगा? जीरो। नम 0। जीरो। 1 0। तो फिर बताओ, इतना पढ़ा के क्या फायदा हुआ मेरा? तो सर मेजोरिटी फेल फर्स्ट कर वाला जाती। भी फॉल्स आएगा। क्या सर 26 फर्स्ट वाला भी एलिमेंट? फॉल्स आएगा। क्यों, इसमें तो 26 एलिमेंट है ना, दिक्कत क्या सर है? स्टार्टिंग तो जीरो से होती है ना, 0 1, हाँ तो तो इसमें तो ट्वेंटी तो, तो सेवन है। क्या ये 26 क्या बताता है? काउंटिंग बताता है। ये डिक्लेरेशन है इंट नम 26, ये एलिमेंट एक्सेस है। समझ में नहीं आ रहा है? अगर ये इसको मैं लिखूंगा इंट num 5, this is 5 int num 5, this is declaration. We are declaring that we have an array who has size 5, so we will start counting through 4. The maximum index is 4. This is declaration, this is accessing. Here we are accessing the element, this is declaration. You should understand the difference. We are fixing the type here. See, you people are not going through the book. Definitely I can ensure you that you are not going through the book. I am teaching you from, means I'm taking line by line from book, is because you people must have a note through which you could follow and understand. And if you people are not going through the book anyway, so it's very bad. Anyway, the third part is it necessary to initialize the array at the time of declaration? Who will tell me the answer? सर फॉल्स है। सर Krishna फॉल्स। Chaudhary. Krishna Chaudhary. यस सर। What will be the answer of third part? सर फॉल्स है बट रीजन नहीं मालूम। Sorry, सर नहीं पता। क्यों नहीं पता? तो तुम क्लास अटेंड क्यों करते हो बेटा? एक मिनट। Why you are attending lectures? There is some intuition, na? Why you are attending lectures? You should utilize this time, na? You should sleep. That would be better for you. There are n numbers of lecture available on internet. Don't need to join my lecture. What will be the worth? There is nothing like I am not getting. I am not. If you are not getting something, you should ask. ये इसमें बहुत बड़ी सी ऐसा क्या पूछ लिया? ये तो डेली पढ़ा रहा हूँ मैं. You can initialize array anytime. You can change array. It is not necessary. Not necessary. Initialize. अच्छा ये बताओ, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कृष्णा? यस सर। Just tell me the meaning of this sentence. What exactly it means? It basically means when we are creating an array, is it necessary to declare its value? हाँ, नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? बताओ अपने अपने लैंग्वेज में बताओ. मतलब बुक किस लैंग्वेज को भूल जाओ, अपने लैंग्वेज में बोलो कि इसका क्या मतलब है. सर तो जो अपन एरे क्रिएट कर रहे हैं उसमें वैल्यू देना जरूरी है क्या जब अपन क्रिएट कर रहे हो उसको? हाँ हाँ, तो ये तो समझ गया ना बात. तो तुमने कभी ऐसा एरे क्रिएट किया जब तुम्हें क्रिएट करते ही इनिशियलाइज करना था? कभी ऐसा हुआ क्या? यस। कभी जरूरी नहीं था. नेवर.
हमने तो sir, majority of time your we are not नहीं initializing. नहीं था. Yes sir. 99% of time we are not initializing. Yes sir. Yes. Okay. Fourth one. Who will tell this? Let me True. choose. Darsh Jain. Sir, it's true. True. क्यों true है ये बताओ. क्योंकि Reason. सर वो अपने ऊपर जो एग्जांपल के हिसाब से हाँ. नम 27 है, तो उस हिसाब से 28 वैल्यूज होंगी क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा. हाँ. Yes. ठीक है. Right. So Darsh, I think Darsh started reading something, है ना? That's why he is getting some point. And rest of the people, those are weak in programming, they are not at all trying it. अगर थोड़ा सा भी ट्राई करोगे बेटा, मैं जितना एरे में टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या अभी और करने वाला हूँ, इज बिकॉज कि पूरे डेटा स्ट्रक्चर में सर पकड़ लोगे अगर एरे समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू आर लूजिंग मैनी थिंग्स. एनीवे, सो अभी नेक्स्ट सेशन जब होगा, अभी जस्ट 10 मिनट्स लेटर, तो इसमें आप लोग कोडसेफ की जो प्रॉब्लम है